In this video, we will solve this question. This question is from the topic independent events from the chapter probability. So question में दिया हुआ है कि E and F जो है वो क्या independent events है. So first of all, what are independent events? So let's say दो event है, event A and event B. So we say A and B are independent events if occurrence of one event does not affect the occurrence of other event. मतलब एक इवेंट का अकर होने पर दूसरा इवेंट का अकरेंस में फर्क नहीं पड़ता है. That means probability of A given that B has occurred is equals to probability of A. So इसका मतलब क्या है? Probability of A given that B has occurred. यहाँ पे B event occur हुआ है पहले. And ये क्या है? ये है probability of A. मतलब यहाँ पे B occur नहीं हुआ है. But दोनों values equal है. मतलब B का occur होने पे या ना होने पे फर्क नहीं पड़ता है. Therefore we say that A and B are independent events. From this condition, we can find that if A and B are independent events, then probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B. So if two events are independent, then probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B. मतलब यहाँ पे E and F क्या independent events है. मतलब we can write that probability of E intersection F is equals to probability of E into probability of F. So from this statement we can write that probability of E intersection F is equals to probability of E into probability of F. So इस कंडीशन को यूज करना है ये फाइंड आउट करने के लिए. So आगे क्या दिया है? Probability of E complement is 0.6. यहाँ पे E बार है which is basically E complement. So probability of E bar is 0.6. So ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन है E complement का. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. ये E complement का दूसरा रिप्रेजेंटेशन है. एंड यहाँ पे मेंशन किया दैट probability of E union F is 0.6. So probability of E union F is also 0.6. And we have to find probability of F and probability of E complement union F complement, or probability of E bar union F bar. We have to find probability of F, then we have to find probability of E complement union F complement. सबसे पहले we need probability of E. So from this equation we will find probability of E, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम probability of F निकालेगा एंड उसके लिए मेरे को probability of E का जरूरत है और उसको निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करेगा. So probability of E complement is 0.6. Probability of E complement is 1 minus probability of E. तो ये भी फॉर्मूला है that probability of A complement is 1 minus probability of A. इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज किया. सो ये फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई किया, मेरे को मिला 1 minus probability of E. From here we can find probability of E. So 1 minus 0.6 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, सो 0.6 बन जाएगा. Probability of E को हम राइट हैंड साइड लाते हैं. So 1 minus 0.6 is probability of E. So probability of E is 0.4. Now we will use this equation to find probability of F. So probability of E union F is 0.6 दिया हुआ है. So यहाँ पे हम लोग यूनियन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. So probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेगा. So this will become probability of E plus probability of F minus probability of E intersection F, and this is equals to 0.6. Since E and F are independent event, मतलब इसका जगह हम ये फॉर्मूला यूज कर सकता. सो यहाँ पे हम लिख सकता probability of E into probability of F, ये लिख सकता क्योंकि E and F are independent events. And remaining as it is probability of E plus probability of F and minus. एंड यहाँ पे हम क्या करेगा, ये probability of E का वैल्यू पुट कर लेगा एंड probability of F निकाल लेगा. सो probability of E is 0.4 plus probability of F minus 0.4 into probability of F equal to 0.6. ये दोनों टर्म से हम probability of F कॉमन ले सकता. सो probability of F कॉमन लेने पर यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा, 1 रिमेनिंग रहेगा माइनस 0.4 रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे इक्वल टू 0.6 एंड यहाँ पे 0.4 था. ना यहाँ से probability of F निकालना है. सो 0.4 अगर इस तरफ जाएगा तो माइनस 0.4 बन जाएगा. सो 0.6 माइनस 0.4 विल बी 0.2 एंड इसको सॉल्व करने पर आई विल गेट 0.6.
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ना पॉइंट्स इसको हम डिवाइड कर सकता, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी 0.2 by 0.6 and what is 0.2 by 0.6? 0.2 by 0.6 will be 1 by 3. So probability of f is 1 by 3. So ये पहला आंसर था। Now we have to find probability of E complement union F complement. So we have to find probability of E complement union F complement. इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। So इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, either by using De Morgan's law or you can use the formula of union. So let me show you both the methods. अगर हम De Morgan's law यूज करते हैं, so इसका दो formulas था, and the formulas was A union B whole complement is A complement intersection B complement. Second formula क्या था? A intersection B whole complement was A complement union B complement. ये दो formulas था। So clearly इस formula को यूज करके हम इसको solve कर सकते हैं। So इसको याद कैसे करना है? So you can see यहाँ पे ये जो यूनियन है ये बन गया इंटरसेक्शन, और आई कैन से इंटरसेक्शन बन गया यूनियन। मतलब जो भी साइन रहे उसको चेंज करना है। यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन बना दो, और अगर इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन बना दो। सेम यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर लो उसको, एंड यूनियन है तो इंटरसेक्शन बना दो उसको। उसके बाद अगर होल कॉम्प्लीमेंट है तो इंडिविजुअल में कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना है, ठीक है। एंड अगर इंडिविजुअल में कॉम्प्लीमेंट है तो होल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना है। सो ऐसे इसको याद करना है। सो यहाँ पर भी सेम लॉजिक अप्लाई करना है। यूनियन है तो उसको इंटरसेक्शन बना दो, एंड इंडिविजुअल में कॉम्प्लीमेंट है तो होल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर लो। सो ई इंटरसेक्शन एफ होल कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पे बार का फॉर्म में क्वेश्चन में दिया है तो हम लोग बार यूज करते हैं। सो ये था फर्स्ट मेथड जिसमें हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया। इफ यू वांट टू यूज द सेकंड मेथड जिसमें यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है बेसिकली, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। सो ये वही फॉर्मूला है जिसमें ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वही फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि ये भी अपने आप में एक इवेंट है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएगा, ठीक है। सो लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट मेथड। सो यहाँ पे क्या है, बेसिकली होल कॉम्प्लीमेंट है। सो जैसे कि हम बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ। एंड ई एंड एफ क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ऐसा लिख सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 1/3। सो 0.4 इज बेसिकली 2/5, सो 1/2/5 इंटू 1/3। क्योंकि 0.4 को हम लिख सकता 4/10 लिख सकता, जिसको सॉल्व करके आई विल गेट 2/5। सो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 1 माइनस 2/15, एंड इसको सॉल्व करने पर यू विल गेट 13/15। बस यहाँ पे एलसीएम लेना, यू विल गेट 13/15। सो ये है आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सो ये बेसिकली एक सिंपल सा क्वेश्चन था ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। So this is how you solve these type of problems. So this is it for the video. We will solve more previous year questions in our upcoming videos. So stay tuned for the next video. Thank you for watching this video.